بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ غازہ میں عالمی فوج کی قرارداد سیکیورٹی کونسل میں پیش۔ امریکہ نے کہا علاقائی پارٹنرز کی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ غازہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی، روزانہ صرف 100 امدادی ٹرکس پہنچ رہے ہیں۔ آر ایس ایف کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے، سوڈان کے وزیر اعظم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نرم پڑے، کہا زہران ممدانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، واشنگٹن کا احترام کریں۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اثر بڑھے گا، حکومت جلد دستور میں ترمیم کرے گی۔ دراندازی جاری رہی تو تمام ضروری قدم اٹھائیں گے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کے درمیان پاکستان نے دی وارننگ۔ فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد طوفان ویتنام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہلاکتیں 100 سے زیادہ ہو گئیں۔ بہار کے 121 اسمبلی حلقوں میں جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ، ڈپٹی چیف منسٹر وجے کمار سنہا پر حملہ۔ چوتھے ٹی20 میں آسٹریلیا کو 48 رن سے شکست، انڈیا 2-0 سے آگے، ہفتے کو فیصلہ کن میچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکی مشن نے کہا ہے کہ اسے غازہ کے مستقبل کے تعلق سے پیش کی جانے والی قرارداد اور منصوبے پر علاقائی پارٹنرز کی مدد حاصل ہو رہی ہے، جن میں سعودی عرب اور UAE شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر نے ایک میٹنگ بلائی، جس میں سیکیورٹی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان نے بھی شرکت کی۔ یہ ملک الجیریا، ڈنمارک، گریس، گیانا، پاکستان، پاناما، ساؤتھ کوریا، سیئرا لیون، سلوینیا اور صومالیہ ہیں۔ اس قرارداد میں غازہ میں امن فوج تعینات کرنے کی تجویز شامل ہے، جسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد پر غور ہونے والا ہے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ امریکی سپاہی غازہ میں تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ فوجیں بھیجنے کے تعلق سے انڈونیشیا، UAE، ایجپٹ، قطر، ترکی اور آذربائیجان سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل نے ترک سپاہیوں کی تعیناتی پر اعتراض کیا ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں۔ تازہ کارروائیوں میں بعض فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے، لیکن ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ جنگ بندی سمجھوتے پر اب تک مناسب ڈھنگ سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ روزانہ صرف 100 امدادی ٹرکس غازہ پہنچ رہے ہیں، جو پریشان حال عوام کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک NGO نے بتایا کہ اسرائیل مدد پہنچانے کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھے۔ تازہ کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یروشلم یا القدس میں بھی دھاوے کیے گئے۔ اس دوران خبر ہے کہ رام اللہ میں ایک گھر کو پوچھ تاچھ کے مرکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ ایک اور ہوسٹیج کی لاش بھیجی گئی ہے۔ دفتر وزیر اعظم نے یہ بات بتائی۔ اس طرح اب تک جنگ بندی سمجھوتے کے بعد 22 ہوسٹیجز کی لاشیں اسرائیل بھیجی گئی ہیں۔ اس فوجی کی پہچان کر دی گئی ہے جو ایک
21 साल का नौजवान है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो मुज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से एक खुला ख़त लिखा गया जिसमें लेबनान के लीडर्स और अवाम से ख़िताब किया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो लेबनान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सूडान के वज़ीर आज़म आमिर इदरीस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि खून खराबा दूसरे इलाकों तक फैल सकता है। अल जज़ीरा चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए इदरीस ने कहा कि RSF किराए के सिपाहियों और बागियों की फ़ौज है जिसने जंगी जुर्म किए हैं। ये ऐसे जुर्म हैं जिनकी इंसानियत की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उनकी मज़म्मत की जा रही है लेकिन सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ख़तरा है कि अगर RSF को रोका नहीं गया तो अफ्रीका और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। इदरीस की हुकूमत RSF के ख़िलाफ़ सूडानी फ़ौज की इत्तेहादी है। पिछले हफ्ते RSF ने अल-फशर टाउन पर कब्ज़ा कर लिया था जो लंबे अरसे से सूडानी फ़ौज का गढ़ समझा जाता है। इथियोपिया के इलाके अफात ने पड़ोसी इलाके तिगरे की फ़ौजों पर दरअंदाजी और कई देहातों पर कब्ज़ों का इल्ज़ाम लगाया। इसे 2022 के अमन समझौते की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। इसी समझौते के नतीजे में नॉर्थ इथियोपिया में जंग खत्म हुई थी। 2020 और 2022 के दरमियान तिगरे में भयानक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई तिगरे लिबरेशन फ्रंट और इथियोपिया की फ़ौज के दरमियान हुई थी जिसमें 6 लाख लोग हलाक हुए थे। अफ्रीकन यूनियन ने फिगर्स जारी किए थे। अफात इलाके के लोगों ने बताया कि तिगरे के फाइटर्स आज ताकत के ज़ोर पर वहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। इस तरह अफ्रीका में एक और जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। को शुरुआत अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर चुने जाने वाले ज़ोहरान ममदानी की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने सोशलिस्ट लीडर से कहा कि वो वाशिंगटन का एहतराम करें। एक दिन पहले ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल की थी। ममदानी जनवरी में हलफ लेंगे। उन्होंने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर हैं। ममदानी की कामयाबी पर रिएक्शन देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी विक्ट्री स्पीच को ख़तरनाक बयान करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें वाशिंगटन की कुछ इज्जत करनी चाहिए क्योंकि अगर वो इज्जत नहीं करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकते और मैं चाहता हूं कि वो कामयाब हों। ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत नए मेयर की मदद करेगी। हालांकि उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट करार दिया। इस तरह ट्रंप के स्टैंड में कुछ नरमी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मायामी फ्लोरिडा में एक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि कम्युनिस्टों, मार्क्सिस्टों और ग्लोबलिस्टों को अपने मौके मिल रहे हैं लेकिन वो तबाही के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट क्या करता है। ट्रंप ने मेयर के इलेक्शन की मुहिम के दौरान ममदानी को एक कम्युनिस्ट दीवाना करार दिया था और उनकी जीत की सूरत में मरकजी फंड्स रोकने की धमकी दी थी। ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि कैसे ट्रंप और उन जैसे लोगों को हराया जा सकता है। सीरिया की वज़ारत दिफ़ा बशार अल असद के दौर में बगावत के दौरान फ़ौज को छोड़ने वाले ऑफिसर्स की दोबारा भर्ती कर रही है। वज़ारत के सीनियर ओहदेदारों ने ये बात बताई। ओहदेदारों ने कहा कि इस सिलसिले में खुसूसी दफ्तर खोला गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान से सरहद पार दरअंदाजी जारी रही तो तमाम ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन बातचीत का पाबंद है लेकिन वो दुश्मन की सरगर्मियाँ जारी रहने की सूरत में अपनी हिफाजत से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है और दरअंदाजी जारी रहती है तो फौजी ऑप्शन ही आखिरी रास्ता होगा। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया काबुल पर असरअंदाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत कामयाब ना हो ऐसा इंडिया चाहता है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहा है जिनका मकसद पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस में फंसाना है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का बढ़ता हुआ असर फ़िक्र की बात है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तुर्की में बातचीत हो रही है। दोनों मुल्कों के बीच पिछले दिनों फ़ौजी झड़प हुई थी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। अब खबर आई है कि हुकूमत दस्तूर में तब्दीली कर रही है जिससे फ़ौज को और ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कन्फर्म किया कि पार्लियामेंट में जल्द ही 27वीं दस्तूरी तरमीम पेश की जाएगी जिसमें ये तब्दीलियाँ शामिल होंगी। कई लोगों को डर है कि इससे पाकिस्तान पर आसिम मुनीर की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। मालूम हुआ कि इस अमेंडमेंट या तरमीम के मुताबिक कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा बनाया जाएगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत 27वीं दस्तूरी तरमीम के साथ उनसे रुजू हुई है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी इन खबरों को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हुकूमत एक तरमीम ला रही है, हम दस्तूर, उसूलों और कानून के तहत इसे पेश करेंगे। इसाक डार ने अपोजिशन की तहरीक इंसाफ पार्टी की इस तशवीश को रद्द कर दिया कि हुकूमत मुनासिब तरीके इस्तेमाल किए बगैर दस्तूर को बदलने की कोशिश कर रही है। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद एक और ख़तरनाक तूफ़ान वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफ़ान में 114 लोग हलाक हो चुके हैं। अब तूफ़ान वियतनाम के साहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलिपाइन में कई गांव तबाह हो गए। इस तूफ़ान को एशिया के इस साल के सबसे ताकतवर तूफ़ानों में से एक करार दिया जा रहा है। फिलिपाइन में तूफ़ान से कई जगह तबाही के आसार देखे जा सकते हैं। मुतासरा इलाकों की हवाई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें तबाही के आसार नुमायां हैं। कई जगह सड़कों पर कारों के अंबार पड़े हुए हैं। लौटते हैं इंडिया। बिहार के 121 असेंबली हलकों में जोशो खरोश के साथ वोट डाले गए। ये 121 हलके 18 ज़िलों में हैं। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने अंदाज़ा ज़ाहिर किया कि तकरीबन 70% वोटिंग हुई, लेकिन क़तई फिगर्स अब से कुछ देर बाद आ सकते हैं। पहले मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ उनमें चीफ मिनिस्टर के अहदे के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, मरकज़ी वज़ीर नित्यानंद राय, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और विकासशील इंसान पार्टी के चीफ और महागठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार मुकेश साहनी ने भी वोट दिया। जिन जिलों में वोट डाले गए उनमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवांग, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। बाज़ हलकों में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शाम 5 बजे पोलिंग ख़त्म कर दी गई। बाज़ वाक़यात को छोड़कर पोलिंग पुरअमन रही। इन इलेक्शंस में हुक्मरान एनडीए और महागठबंधन के दरमियान सख्त मुकाबला है। बाकी सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को गिनती होगी। पहले मरहले में 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोट देने के अहल थे। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पोलिंग के दिन लखीसराय ज़िले में हमला किया गया। नामालूम लोगों ने उन पर पथराव किया, जूते चप्पल फेंके और गोबर भी फेंका। उन्होंने हुजूम ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिन्हा ने इल्ज़ाम लगाया कि आरजेडी के गुंडों ने उन पर हमला किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी से कहा कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। सीनियर बीजेपी लीडर सिन्हा चौथे टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने डीजीपी को हिदायत दी कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। दूसरे मरहले के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। एनडीए और महागठबंधन के लीडर्स अलग अलग हलकों के तूफानी दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अररिया में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने आरजेडी पर लाकानूनियत या लॉलेसनेस फैलाने और बिहार को बैकवर्ड रखने का इल्ज़ाम लगाया। क्रिकेट। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 इंटरनेशनल में 48 रन से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में इंडिया अब 2-1 से आगे है। पहले बैटिंग की ख्वाहिश पर इंडिया ने 8 विकेट पर 167 रन बनाए। शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा 46 रन स्कोर किए। अभिषेक शर्मा ने 28, शिवम दुबे ने 22 और सूर्य कुमार यादव ने 20 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18 ओवर्स और 2 बॉल्स में 120 पर आउट हो गई। मिशेल मार्श ने सबसे ज़्यादा 30 रन बनाए। इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 3, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट ली। 5वां और आखिरी टी20 मैच हफ्ते को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में आलमी फौज की करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में पेश। अमेरिका ने कहा इलाकाई पार्टनर्स की मदद हासिल हो रही है। गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, कई फलस्तीनी जान बहक और जख्मी। रोजाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक्स पहुंच रहे हैं। आरएसएफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। सूडान के वजीर आजम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से किया मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़े, कहा जोहरान ममदानी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, वॉशिंगटन का एहतराम करें।
پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اثر بڑھے گا، حکومت جلد دستور میں ترمیم کرے گی۔ دراندازی جاری رہی تو تمام ضروری قدم اٹھائیں گے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کے درمیان پاکستان نے دی وارننگ۔ فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد طوفان ویتنام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہلاکتیں 100 سے زیادہ ہو گئیں۔ بہار کے 121 اسمبلی حلقوں میں جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ، ڈپٹی چیف منسٹر وجے کمار سنہا پر حملہ۔ چوتھے ٹی20 میں آسٹریلیا کو 48 رن سے شکست، انڈیا 2-0 سے آگے، ہفتے کو فیصلہ کن میچ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔